Good morning, everyone. In the yesterday classes, we have completed Stokes law and concept of terminal velocity, and we find out the expression for both the cases. In Stokes law, we have an expression for the viscous force when a spherical body of radius r falls in a fluid moving with a velocity v is given by F is equal to 6 pi eta r into v, where eta is what? It is the coefficient of viscosity of the fluids. And we have derived this also. After that, we have done terminal velocity. We see that if a body experiences no net force inside the fluid, then it moves with a constant maximum velocity. That maximum constant velocity is known as the terminal velocity. For that, we have find out the expression v is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma upon eta, where eta is the coefficient of viscosity of the fluids, rho is the density of the body, sigma is the density of the fluids, r is the radius of the body, and g is the acceleration due to gravity. So these two expressions we have done and derived also. Now in today's class we will discuss some numerical. These are very important numerical based on this Stokes law and the terminal velocity. So let's start with the first equation, which is based on the Stokes law. Equations क्या है देखते हैं. We have a raindrop of radius 0.3 mm falls through air with a terminal velocity of 1 meter per second. The viscosity of air is 18 into 10 to the power minus 5 poise. Find the viscous force on the raindrop. On the raindrop, what is the viscous force is acting on that? Okay, so let's start to do this. हमें क्या क्या दिया हुआ है? First we are going to write down what we have given. Since we have given what we have given radius of the. अब now you see that यहाँ पे क्या लिखा है? Coefficient of viscosity in given in poise. Poise किस में होता है? Coefficient of viscosity की यूनिट इन SI सिस्टम. तो अगर ये SI सिस्टम में है, दिस इज गिवन इन नॉट SI सिस्टम, सॉरी ये आपका CGS सिस्टम है. Poise इज द CGS सिस्टम. ये हमारा MKS सिस्टम है और ये ना तो CGS है ना तो आपका MKS है. तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट कर लें, उसको सेम यूनिट में वी हैव टू कन्वर्ट इट ना. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, CGS सिस्टम में चलते हैं. Poise को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा. ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट डाउन इन CGS सिस्टम, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट. तो हमें क्या दिया है, रेडियस r बराबर दिया हुआ है 0.3 mm. इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0. डिवाइडेड विद द 10, तो 0.3 सेंटीमीटर. दिस यू कैन डू. नेक्स्ट वी हैव गिवन टर्मिनल वेलोसिटी v बराबर कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड. इसको कितना बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में. तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देन हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बराबर दिया हुआ है 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 पॉइंट. ये हमारा सीजीएस सिस्टम में है. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट एनी सम अदर फैक्टर. ये हो गया. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू find out, we have to find out what is the viscous force acting on a raindrop. F पता करना है. तो now from simple question is there, इसमें क्या करना है, we have to substitute the value. Now from Stokes law viscous force F is equal to कितना होता है, 6 pi eta r into v. Now substitute all the values.
6 पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14। ईटा बराबर दिया हुआ है 18 इंटू 10⁻⁵। आर कितना दिया हुआ है 0.03 सेंटीमीटर। वी कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस एंड सॉल्व दिस, यू आर गेटिंग 1.018 इंटू 10⁻²। और ये एफ किस में होगा सीजीएस में, मीन्स डाइन। क्लियर? Therefore, that is the viscous force on the raindrop is the viscous force on the raindrop is 1.018 into 10⁻² dyne. You can convert in a Newton, तो वो हमें जरूरत नहीं है, सीजीएस सिस्टम में ही हम इसको लिख लेंगे। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो दिस वी हैव डन वन न्यूमेरिकल ऑन द स्ट्रोक्स लॉ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टर्मिनल वेलोसिटी। दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हमें। 8 रेन ड्रॉप of radius 1 mm each falling down with terminal velocity of 5 centimeter per second coalesce to form a bigger drop. What is the meaning of coalesce? Means they combine, the smaller drops जो हैं they combine to each other and they make a big group. Collapse का यूज कहाँ होता है? जब कोई छोटी छोटी चीजें मिल करके कोई बड़ी चीज बनाती है, then this word is used. तो क्या हमारे पास है, वी हैव गिवन 8 ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज ऑफ रेडियस 1 mm और दे कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। देन व्हाट विल बी द चेंज इन द टर्मिनल वेलोसिटी, या फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी अगर इंडिविजुअल ड्रॉप्स की जो टर्मिनल वेलोसिटी अगर है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इट्स कम इन न्यूमेरिकल एग्जाम एंड कॉम्पिटिशंस आल्सो। तो चलिए इसको हम ड्राफ्ट करते हैं। इसको देखिए स्टेप्स क्या है, इसको करने का तरीका क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी में तो हमें क्या होना चाहिए, वी शुड नो द रेडियस। अब नाउ यू सी दैट कि हमें क्या होना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में। v बराबर क्या होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। तो हमें 2/9 इज देयर। तो अब में क्या है, रो विल बी द कांस्टेंट, सेम है, सिग्मा इज द कांस्टेंट, देन द थिंग्स इज दैट ईटा विल बी द कांस्टेंट, ओनली द वेरिएबल इज की रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल वो क्या होगी, हमें ये पता करना पड़ेगा कि इफ वी कंबाइन 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm then what will be the radius of the bigger drops. ये हमारा कॉन्सेप्ट है एंड हाउ दैट वी विल फाइंड आउट, वी हैव टू सी दिस। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट वी हैव गिवन। तो मेरे टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। गिवन वी हैव रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप्स कितना दिया हुआ है 1 mm और ये दिया है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। टर्मिनल वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉप कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। नाउ वी सी दैट अब रेडियस को हम कैसे पता करेंगे कि हाउ द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज रिलेटेड विद द रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। तो हमें इसका तरीका ये होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे हमें क्या करना होता है कि हमें वॉल्यूम विल बी द सेम ना। अगर जितनी भी अगर 8 ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स मिल करके अगर बिगर ड्रॉप्स क्रिएट करती हैं तो द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द
8 स्मॉल ड्रॉप्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ बोथ विल बी द सेम। तो क्या होना चाहिए, सिंस वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ दिस को स्मॉल आर ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप is equal to volume of 8 small drops। ये तो क्लियर है, ये तो समझ आ रहा होगा कि जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। अब जो रेन ड्रॉप है उसका शेप हम मान लेते हैं स्फीरिकल, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द ईच बॉल। ये भी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल बॉल। You see some constant 4/3 pi will be cancelled out, so what we will get, r cube is equal to 8 into small r cube. This will give r is equal to cube root of 8r cube। ये कितना आएगा, this will be equal to 2 into r, और 2 into r means 2 into 0.1 centimeter, so this capital R will be equal to 0.2 centimeter। This is what? This is the radius of the bigger drop, which is formed by the combination of the 8 small drop will be equal to 0.2 centimeter। अब हम पता कर लेते हैं terminal velocity of each drop is given by how। चलिए देखते हैं। Now टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप्स, कितना होगा, v स्मॉल v हमने लिख लिया इज इक्वल टू 2/9 स्मॉल r स्क्वायर रो माइनस रो प्राइम या सिग्मा g अपॉन ईटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्लियर, ये तो हमारा हो गया स्मॉलर ड्रॉप के लिए। फॉर बिगर ड्रॉप क्या, टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V इज इक्वल टू 2/9, ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक, रो माइनस सिग्मा g, दिस विल बी द कांस्टेंट, ईटा विल बी द कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन, देन लेट अस सी। नाउ वी डिवाइड दिस इक्वेशन, व्हाट वी गेट फ्रॉम बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड विद द इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो चलिए क्या मिलेगा हमें पास, कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, 2/9 will be cancelled out, rho minus sigma will be cancelled out, g will be cancelled out, so we will get r square upon small r square। क्लियर, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v मल्टीप्लाइड बाई r अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, और वी हैव व्हाट, अभी हमने लिखा था r बराबर 2 into r, तो r अपॉन r बराबर कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, ये कितना हो जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल बॉल, ये कितना आया था, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, दैट इज द टर्मिनल velocity of bigger drop is 20 centimeter per second। This is our answer।
तो क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल था। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आपको थी रेडियस ऑफ द बिगर बॉल हमें नहीं दिया था, बिगर रेन ड्रॉप नहीं दिया हुआ था, दैट वी कैन फाइंड आउट द कंसेप्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ball by which that is found, and from that we can find out the relation between radius of the bigger ball to the radius of the smaller ball. If that is given it's okay. अगर हमें मान लीजिए स्मॉल आर नहीं भी दिया होता तब भी हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर, दिया है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन पुट द वैल्यू हियर 2.2, तो वैसे भी पता कर सकते हैं, या इफ दैट इज न्यूमेरिकली नॉट गिवन दैट वी कैन आल्सो फाइंड आउट दिस terminal velocity. So this is the solution of this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? वी हैव गिवन ए स्फीयर इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। क्लियर, हमें क्या लेना है? Taking the average acceleration as half of the initial acceleration, we have to prove that so that the time taken to attain the terminal velocity is independent of the fluid density. जो टाइम टेकन है वह क्या होगा? That is independent of the फ्लूइड डेंसिटी। इट्स क्लियर कि वो जो टाइम होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन दैट फ्लूइड डेंसिटी। फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट्स सी कैसे हम सॉल्व करेंगे। वी हैव टू टेक, हमें स्फीयर दिया है ना, तो फॉर सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू टेक सम डायमेंशंस ऑफ द स्फीयर। लेट अस कंसीडर, लेट द sphere of radius, क्योंकि we need radius in numerical ना, तो हम r ले लेते हैं, radius of sphere and density rho, and of density rho क्या है? This is the density of the sphere. Falls, जैसे हमने टर्बुलेंट वेलोसिटी का कांसेप्ट किया था, फॉल्स इन फ्लूइड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। क्लियर, सिग्मा ले सकते हैं, रो प्राइम ले सकते हैं, तो सिग्मा डेंसिटी से पे के फ्लूइड में ये आपको फॉल्स कर रहा है। ठीक, एंड विस्कोसिटी, ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया है, एंड विस्कोसिटी ईटा। क्लियर, नाउ वी सी दैट, अब हम देखते हैं नाउ इफ द स्फीयर इंटर्स द फ्लूइड, जस्ट अगर इंटर करता है स्टार्टिंग में, तो व्हाट विल हैपन? द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन इट, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? क्योंकि एट दैट टाइम जस्ट उस समय क्या होगा कि उस पे आपका विस्कस फोर्स नहीं होगा। शुरू में जस्ट जैसे ही एंटर किया, जैसे ही नीचे जाता, देन इट विल इंक्रीज ना। तो इन स्टार्टिंग वी कैन सपोज दैट कि उस पे कोई विस्कस फोर्स नहीं है। जैसे वो इंटर किया, इनिशियल कंसेप्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो इनिशियली क्या होगा? व्हेन द स्फीयर जस्ट, क्योंकि हमने डेरिवेशन जब किया था टर्मिनल वेलोसिटी का, तो वी हैव कंसिडर्ड 3 फोर्सेस। एक आपका उसका वेट होता है, एक आपका अपथ्रस्ट होता है, और थर्ड इज द विस्कस फोर्स विच एराइजेज एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एराइजेज या इंक्रीजेज। तो वो तो अभी नहीं है, जस्ट इट्स इंटर इन द फ्लूइड, तो विस्कस फोर्स तो अभी होगा नहीं। तो व्हेन द स्फीयर जस्ट इंटर्स द फ्लूइड, जस्ट इंटर्स द फ्लूइड, तो क्या होगा? द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन
इट इज गिवन बाय नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ द, नाउ यू सी दैट, एक अभी हम लिख रहे हैं इसको समझा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ स्फीयर माइनस वेट ऑफ द, अप थ्रस्ट होगा, अप थ्रस्ट, क्लियर, क्यों अप थ्रस्ट बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे जा रही है ना, ये ऊपर तो आ नहीं रही है, तो दैट्स वाई ये वेट ऑफ द स्फीयर शुड बी लार्जर देन दिस, तो नेट फोर्स कितना होगा, वेट में से ऑफ थ्रस्ट को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्लियर, तो वेट कितना हो जाएगा, और ये देखिए वेट आपका हो जाएगा माइनस ये वेट, जैसे ये सेम कंसेप्ट इज देयर जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी का लिया था, वेट ऑफ स्फीयर, अब थ्रस्ट किसके बराबर होगा, फ्रॉम द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये तो होता है, अब थ्रस्ट कितना लगता है, इज इक्वल टू द अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, ये कितना हो जाएगा, वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी रेडियस, डेंसिटी इसका क्या लिया आपने, रो इंटू जी, मास वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वेट बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू जी, और एम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इंटू जी, सेम चीज 4/3 पाई रेडियस आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, ये कितना हो जाएगा 4/3, वी कैन टेक कॉमन, पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, this much net force act when the body just enters, therefore अब ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि जस्ट इंटर की बात हो रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन यह बराबर क्या होता है, m इंटू ए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन m, ये कितना हो जाएगा, सेम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी देयर, आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी अपान मास ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई, मास इज देयर, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी मास तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वेट हम नहीं कर रहे हैं, तो जी विल बी नॉट देयर, ये हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, तो व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन, 4/3 विल बी कैंसिल आउट, पाई विल बी कैंसिल आउट, आर क्यूब विल बी कैंसिल आउट, और रो तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, और ऊपर क्या होगा, जी रहेगा, यहाँ जी नहीं रहेगा, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग आउट द वेट, ये आपका मास होगा, तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी आपकी बॉल की ये स्फीयर की कितनी है, रो, तो ये हो गया, ये तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, हाफ ऑफ दिस, ठीक, अभी देखिए, व्हेन द स्फीयर अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी, नाउ व्हेन द स्फीयर अटेन, ये तो आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 होता है ना, तो व्हेन द स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 0, एक्सेलरेशन विल बी 0, तो अब हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा a प्लस 0/2, क्लियर, अब ये कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, रो माइनस सिग्मा g अपॉन 2 इंटू रो, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं स्फीयर टेक्स t टाइम, लेट अस सपोज दैट कि स्फीयर टेक्स टाइम t टू अटेन, लेट, हमें ये तो प्रूव करना, लेट द स्फीयर टेक
t time to attain what? To attain the terminal velocity. ठीक, और टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी. ये तो होता है. क्लियर? कि अगर फ्लूइड की डेंसिटी हमारी सिग्मा है, रो ये होगा. ये हमारा कंसेप्ट हो गया. ये तो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना होगा? 0 शुरू में. तो हमें क्या करना है? बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम. लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग. चलिए, तो हमारे पास क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस a टी. ए v और क्या है? 2/9 r स्क्वायर ईटा रो माइनस सिग्मा g इज इक्वल टू 0 प्लस एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया था? रो माइनस सिग्मा अपॉन 2 इंटू रो इंटू जी इंटू टाइम टी. नाउ यू सॉल्व दिस. ये कितना हो जाएगा? 2/9 r स्क्वायर अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा g इज इक्वल टू 0 रो माइनस सिग्मा अपॉन 2 इंटू रो g इंटू टी. नाउ सी सम टर्म विल बी कैंसिल आउट, g विल बी कैंसिल आउट, रो माइनस सिग्मा विल बी कंप्लीटली कैंसिल आउट. देन नो अदर फैक्टर आर देयर. तो देयरफॉर t बराबर कितना हो जाएगा? t विल बी इक्वल टू दिस विल बी मल्टीप्लाई विथ 4 अपॉन 9 r स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ द स्फीयर अपॉन ईटा. क्लियर? तो जो कितना टाइम लगता है टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी? 4/9 r स्क्वायर रो अपॉन ईटा. दिस एक्सप्रेशन this shows that time does not depend on sigma, that is density of fluids. ये तुमने देखा था. अगर यहाँ पे सिग्मा आ जाता तो देन टाइम विल डिपेंड ऑन दैट. लेकिन यहाँ पे कोई सिग्मा नहीं है, सिग्मा इज कैंसिल्ड हियर. देयरफॉर दैट इज दिस शोज दैट, ये तो हमें प्रूफ करना था, दैट इज टाइम. ये तो हमें प्रूफ करना था कि टाइम टेकन टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी, attain the terminal velocity is independent of the fluid density. ये आपका जनरल हो गया. ये आपके 1 मार्क्स में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ऑन विच फैक्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स. तो इट्स क्लियर. दिस वे वी कैन प्रूव दैट कि जो टाइम होता है वह फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करना. तो दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट दिस क्वेश्चंस.